Good afternoon, everyone. On behalf of Smart Wealth, I welcome you all in this EduCare series. As you all know, we conduct various webinars on Sunday. If you have missed any of the session, do watch it on Shreya with the YouTube channel. Do subscribe also. You will get the notification for all upcoming webinars. Today's topic is importance of financial planning. Today's speaker is Mihir Vaidya, who is the partner founder of Smartmail Financial Services LLP. He has a experience, enriched experience in ICICI Bank, ICICI Pro, HP, 10 years in investment advisory, helped more than 2,000 families and salaried professionals with investment advice. Apart from SmartWealth, Mihir is also a founder of Smart Consulting, which is a recruitment consultancy that places candidates in pharma, banking, and IT industry. So I welcome Mihir in this session, and I guess you can start with today's topic. Thanks a lot, Deepali, for such a lovely introduction. And I welcome all the participants here. Thanks a lot for coming over here. So today's session, I am focusing primarily on salaried people. Okay, those who are currently employed in various organizations. Okay. So why this idea about doing a session for salaried people? मेरे पास ये because of current corona related times, I'm getting a lot of inquiries from our clients as well as our candidates. Okay, they are facing Hello. Yes, Mihir is. so in terms of savings, etc. So I thought, why not do a full-fledged session for salaried people, and that's where this idea came from. And Dipali helped me, so thank you, Dipali. Uh, yeah. So coming to what exactly we'll be doing today is I have basically I'll be telling some of the 8 to 10 common tips or maybe suggestions which I can give you all as salaried people as to how you can improve your financial health, how you can start financial planning on your own, and how you can overall improve the financial situation of yourself. Okay, whether it is corona or no corona, this kind of whatever suggestions which I am giving is going to be helpful even beyond that. Okay, so can we next move to the next slide, please? Thank you. So most importantly, what I see is a lot of people do not manage their expenses. They just live by the day. महीना चालू होते ही सैलरी आ जाती है और सैलरी या तो ईएमआईज में या तो एक्सपेंसेस में चली जाती है पूरी तरह से, एंड देन देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर सेविंग्स. ओके, सो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है काफी बार कि लोगों को उनके, अगर मैं पूछूं, काफी, सो आई हैव टिल नाउ मैनेज्ड ओवर 2000 ऑड सैलरीड क्लाइंट्स जिनका हमने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है. तो काफी लोगों के पास उनका खुद का एक्सपेंस कितना है, अगर ये मैं सवाल पूछूं तो a lot of people just don't know that, and that's the reason is because they are not aware of their overall expenses. So what I suggest is कि ये मैंने एग्जांपल दिया है कि एक ऐसी शीट आप खुद बना सकते हो आपके कंप्यूटर पे, या तो आपके बुक में भी मेंटेन कर सकते हो, जिसमें आप आपके ओवरऑल इनकम कितने हैं और कौन से एक्सपेंस है, और ये शीट को आप रेगुलरली अपडेट करते रहो. बिलीव मी, काफी सारे लोग हैं, ये सिंपल छोटी सी चीज है, इसी पे से आप आपके पैसे सेव करना चालू करोगे. अगर आप इसको मंथ टू मंथ पे अपडेट किया करोगे, या इवन हर 3-4 मंथ में कि आपका कितना खर्चा हो रहा है वीजा विज कितना इनकम आ रहा है,
तो आपको पता चलेगा कि ओके ये गलत एक्सपेंस मेरे यहाँ से हो रहे हैं, एंड यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग दोज एक्सपेंस. सो ये एक सिंपल सी छोटी सी हैबिट है जो डालना आप चालू कर सकते हो, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 10 minutes every month. या दीपाली? या सो आपको क्या लगता है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग या के लिए सही एज कौन सा है या सही टाइम कौन सा है? वेरी नाइस क्वेश्चन. एंड टू बी फ्रैंक, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सही एज और सही टाइम इज नाउ. नाउ एंड इमीडिएट. अगर आप अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हो एंड तो प्लीज स्टार्ट करो इमीडिएटली. द रीजन इज बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिफिकल्ट बाय द डे. अगर आप अच्छी तरह से प्लान करोगे तो आपको किधर जाना है, आपको आपकी जर्नी दिखाई देगी. ओके, आपके गोल्स कौन से हैं ये आपको पता चलेगा, एंड उस बेसिस पे आप पैसा सेव करना चालू करोगे. फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली हम लोगों के फाइनेंशियल गोल्स आगे क्या रहेंगे ये देखते हैं, एंड उस गोल के लिए क्या क्या पैसे उनको लगने वाले हैं ये हम उनसे इसके लिए हम प्लान करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, बट ये आइडियल करना जरूरी है. आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? मतलब इफ पीपल गेट टू नो अबाउट इट एट अ अर्ली एज, तो कौन से एज से ये चालू होना चाहिए? जिनको लेट पता चला है तो जब से पता चला है तब से करेंगे, लेकिन सही टाइम कौन सा होना चाहिए? sooner the better. जितना एज, आई वुड सजेस्ट दोस्त, खास करके दोस्त millennials who are today between 20 and 30 and have started their job, you are in a best position to have a beautiful future. आपको खाली ये करना है कि आपके सैलरी में से आज के टाइम पे देर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आप एक्सपेंस कर सकते हो. आप होटल्स में जा से खाना मंगा सकते हो, आप अमेजोन पे से मोबाइल फोन और अलग अलग गैजेट्स मंगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. लेकिन इस सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो वो है कि आप पैसा आपके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो. और ये बहुत खूबसूरत चीज है, बिलीव मी. आज की लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल हो इसलिए हम काफी बार अपने कल को प्रॉब्लम में डालते हैं. अगेन आई विल रिपीट, आज की लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा एंजॉयबल हो इसलिए हम आपके अपने कल को प्रॉब्लम में डालते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज डोंट डू दिस. आप आज भी एंजॉय करो और कल भी एंजॉय करो, बट आज भी थोड़ा लिमिट में एंजॉय करो ताकि आपका कुछ पैसा सेव हो जाए, ताकि कल भी आप उतने ही अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओ. सो ये बहुत जरूरी है. A lot of people don't understand this, and then when there are troublesome times, they face issues. आई गेस अभी कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों का इसका महत्व शायद पता चला है, क्योंकि सडनली है या सैलरी, so I guess this will definitely help them. अभी जो आपने एग्जांपल दिखाया है सैलरी, उसमें एक वेरिएबल कंपोनेंट भी दिखता है, वेरिएबल सैलरी और सम टाइम बोनसेस, तो ये टोटलिटी में कंसिडर नहीं किया है. तो आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल हु प्लान टू spend this money on unnecessary expenses. मतलब कलर करवा लिया या घर में कुछ फर्नीचर कर लिया, या मतलब उसका उतना जरूरत है या नहीं ये देखा नहीं जाता है. तो व्हाट विल यू एडवाइज, हाउ एंड वेयर सच फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड? Yes. So can you go to the next slide, please? So I think expenses are of two types. Okay, one is essential and one is unnecessary. Okay, एसेंशियल एक्सपेंसेस वो रहते हैं जहाँ जो आपकी सर्वाइवल नीड के लिए है या आपको जो जरूरी होते हैं, जिसके बिना आप
लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, वेदर इट इज मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, सर्वाइवल के लिए आपके डेली नीड्स जो है, आपके ग्रोसरीज वगैरह, सो दीज आर एक्सपेंसेस जो आपको करने ही पड़ते हैं. बट देन देर आर लॉट ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस. एक एग्जांपल देता हूँ मैं. अभी कुछ दिनों पहले की बात है. One person I know was facing a lot of financial troubles. In fact, he had posted on Facebook also for asking for help to a lot of people. Okay. Now, when I spoke to him and he called me for help, I spoke to him. I just understood that in the his salary is around 25,000 rupees, and he stays in a really small place. और उसने कुछ दिन पहले, just before the lockdown, he had taken a 55-inch का television set. Okay. uh, and I asked him what was the cost of that television. He said it was around 45,000 rupees. His salary is around 25,000 rupees. उसमें उसका रेंट जाता है, महीने के खर्चे चलते हैं, सब होने के बाद उसने एक 45,000 का टीवी खरीदा. मैंने पूछा भाई क्यों खरीदा इतना बड़ा टीवी. तो ही सेइंग कि बिकॉज उसके ऑफिस में कुछ लोगों ने 50 इंच का टीवी खरीदा या 47 इंच का टीवी खरीदा एंड व्हाट नॉट. सो बेस्ड आउट ऑफ पीयर प्रेशर जिसे बोलते हैं कि बाकी लोग कर रहे तो मेरे को भी करने चाहिए. ओके. बाकी लोग को इम्प्रेस करने के लिए, बिल्डिंग में किसी और ने लिया तो मुझे भी लेना चाहिए, मेरे ऑफिस के कलीग ने XYZ चीज लिया तो मुझे भी उससे बेटर चीज लेनी चाहिए. ये जो पीयर प्रेशर में लोग आके उनके एक्सपेंस करते हैं. ओके. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो एक्सपेंस रहते हैं, दीज आर ऑल इमोशनल डिसीजंस, दे आर नॉट फाइनेंशियल डिसीजंस. ये डिसीजन लेने से पहले हम सोचते नहीं है. घर में कलर कराना, ओके, या व्हाट एवर इट इज. सो दीज काइंड ऑफ डिसीजंस, अगर ये नेसेसरी है, इसेंशियल टाइप से, तो देन यू शुड डू इट. बट इज इट नेसेसरी, ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना पड़ेगा. ओके. एंड बिकॉज ऑफ these kind of unnecessary expense, people are not able to save for their future. They live in present. Living in present is a good thing, but living in present by ignoring the future is definitely not the correct thing to do. Okay. So coming to your question कि आपके जो वेरिएबल, काफी बार मैं दिवाली में बोनस मिलता है काफी लोगों को, या वेरिएबल सैलरी है, सेल्स में जो लोग रहते हैं उनको उनके इंसेंटिव्स मिलते हैं. प्लीज प्लीज डोंट जस्ट प्लान टू, बोलते हैं ना, पैसे उड़ाने के लिए प्लान मत करना. उसमें से कुछ आपके फ्यूचर के लिए, आपके घर वालों के फ्यूचर के लिए कुछ उसमें से पैसे सेव भी करना, तो ही आपका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होगा. Yeah, and can you go to the next slide, which is I think related to that itself. Okay. So this was what people, I've just mentioned old formula and new. पहले लोग ये करते थे, या काफी लोग ये करते हैं कि पहले इनकम आता है, इनकम के साथ अगर वेरिएबल सैलरी आ गई या बोनस आ गया तो वो सारा का सारा एक्सपेंस प्लान करते हैं. मैं घर के लिए ये लूंगा, या मैं गोवा में ट्रिप जाके आऊंगा एंड व्हाट नॉट. ओके. एंड फिर उससे जो भी बचता है वो सेविंग में जाता है. रादर व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल इज यू शुड कमिट टू सेविंग्स. जैसे इनकम आता है, सपोज आपकी सैलरी 30th ऑफ द मंथ को या 1 तारीख को, 2 तारीख को, जब भी कभी आपके अकाउंट में आती है, उससे 3-4 दिन बाद बाय डिफॉल्ट आप सेविंग्स चालू करना आपके अकाउंट में से. सो सपोज आपको से 50,000 रुपीज एज अ सैलरी यू गेट ऑन 30th ऑफ एवरी मंथ, तो इंश्योर करो कि उसमें से 2,000, 4,000, 5,000, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, you do investment in any tool. I'm not saying do it in this, you do it in mutual fund or you do it in FD or whatever it is. Please invest in any of the tool then and there itself. At the end, मतलब हर 4-5 तारीख तक आपके अकाउंट में से वो पैसा गायब करो. अगर वो आपके अकाउंट में दिखेगा तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा. उससे उस पैसे की वजह से फिर घर में कुछ ना कोई चीज आएगी और वो चीज कुछ दिनों बाद आपके लिए यूजलेस हो जाएगी. बट वही पैसा अगर आपके अकाउंट में रहेगा तो आपको फ्यूचर के लिए भी यूजफुल रहेगा. उसी पैसे से आपके बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, आपका आगे का घर बन सकता है, आपका रिटायरमेंट हो सकता है, आपके मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं.
तो जरूरी है कि सेविंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ कमिटेड बेसिस इज वेरी नेसेसरी। मिहिर, क्या क्या अ, अभी आपने जो बताया, इसमें ये इनकम और सेविंग, हाँ, इसका रेशो क्या होना चाहिए? आइडियल रेशो क्या है? again it depends on size of family and many things kind of, whether so if say example, if you are living in your own home, so you don't have a rental expense, okay, so then your savings should be high. If you are a double income kind of family, again your savings should be high. सो टोटली इट्स नॉट अ पर्टिकुलर एक लॉजिकल नंबर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 10-20% सेव करो, 30% सेव करो, सॉरी दैट इज नॉट इनकम। आप खुद के एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाओ, इनकम में से जो जो एक्सपेंस आपके अननेसरी एक्सपेंस है उनको बाजू में रख दो, ओके। सो उसके बाद जो भी बचता है वो आप उसमें से एटलीस्ट 80 to 90% पैसा सेव होना चाहिए। सो एग्जाम्पल, आपका सैलरी 50,000 रुपीज है और आपका एक्सपेंस हर महीना हो रहा है 30,000 रुपीज, ओके। आपने जब ये एक्सपेंस को ठीक से देखा तो आपको पता चला कि ये 30 में से खाली 20,000 रुपीज ही है जो आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस है, इसेंशियल एक्सपेंसेस है, ओके। और बचे 10,000 इज ऑल अननेसेसरी एक्सपेंस। सो व्हाट आई से इज के 50,000 माइनस 20,000 इज 30,000 आप पैसा बचा सकते हो। तो 30 में से एटलीस्ट, if not the entire 30, at least 25, at least 24, 23, जितना 30 के नजदीक आप बचा सकते हो उतना बेटर है आपके लिए। बचे 4-5 हजार से आप एक्सपेंस करो एडिशनल जो भी है, बट पूरा का पूरा आप अगर 30 में से पूरा जितना ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंस करोगे तो ये पैसा उड़ जाएगा एंड देन आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स देगा। आज तो नहीं देगा, आज अच्छी रह गई लाइफ, लेकिन आगे जाके जैसे कोरोना जैसा टाइम आ गया, सिर्फ बुरा वक्त कह के नहीं आता है, सबके साथ कभी ना कभी आता है, मेरे साथ भी आया है, आपके साथ भी आएगा। सो इस बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर करने के लिए ही हम सेव करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब खाली इन्वेस्टमेंट होता है या और कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होती है? Financial planning is not just investment, is just one part of it. It's about habits. It's about putting good habits in place. जैसे simple example दूं कि if anybody wants to stay healthy, he has to have good habits, right? He has to eat good food, he has to do some exercise, he has to drink ample water, okay, he has to sleep properly. अभी ये हमें हेल्दी रहने के लिए अच्छी हैबिट्स है, अगर आप हैबिट अच्छे रखोगे तो अपने आप हेल्दी रहोगे, करेक्ट। सेम इज सेम इज व्हाट अप्लाइज टू फाइनेंशियल हेल्थ, ओके। आप अननेसेसरी एक्सपेंस कम करो, आपका जो भी पैसा बचता है उसको सेव करो टाइम टू टाइम बेसिस पे। आप आपके सेविंग्स, जैसे हेल्दी रहने, हेल्दी आदमी अपने आप को मेजर भी करता रहता है कि भाई मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा है, या मेरा बीपी और ये सब शुगर लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। वैसे ही आप आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को भी मेजर करते रहो टाइम टू टाइम, वेदर आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छी तरह से रिटर्न दे रहे कि नहीं, काइंड ऑफ। तो अगर मैं दोनों चीजों को कंपेयर करूं, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ, दोनों के लिए अच्छे हैबिट्स जरूरी है। एंड नंबर वन हैबिट इज कमिटमेंट। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको आपके हेल्थ के साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। बिना कमिटमेंट के ये काम होगा नहीं। आप सोचोगे कि मैं साल के एंड में मैं सारा का सारा एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तब तक आपका काफी पैसा एक्सपेंस में उड़ गया रहता है। इसलिए कमिटमेंट जरूरी है। वो तो कमिटमेंट ऐसी जो सलमान खान वाली है काइंड ऑफ, कि आप हर महीना कुछ ना कुछ सेव करो अपने आप, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, आपको इसके फल मिलेंगे। आई गेस इसमें पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी यस होता है, यस क्योंकि ये बहुत बार देखा
जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया जाता है, बट कुछ प्रॉपर्टी परचेज शॉर्ट टर्म में डिसाइड होता है और वो जो कुछ प्लान किया रहता है लॉन्ग टर्म के लिए वो विड्रॉ हो जाता है। तो आई गेस उसके लिए भी पेशेंस रखना ज़रूरी। सो अगेन मैं दिस ये बोलूं कि सेम, अगर मैं वेल्थ और हेल्थ को अगर मैं फिर से इस चीज को कंपेयर करूं, आई एम सॉरी, आई गेट वेरी टेम्पटेड टू कंपेयर दीज टू थिंग्स. सो see, a healthy person may actually always try to stay healthy, but there are always distractions. आपके सामने लड्डू आ गया, आपके सामने केक आ गया, तो जो डिस्ट्रैक्शन से वहां पे आती है वैसी डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके फाइनेंशियली भी डिस्ट्रैक्शंस आती है. अच्छी अच्छी चीजें नया, सपोज कोई सस्ते में मिल रहा है इसलिए बाय करता हूँ. ओके, सेल सेल इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन, and then you land up and buy. So if you are getting, just because you are getting something 20% cheap, you go and buy three more things and actually land up spending 130% or 150% of the amount which you intended to spend. So then how is it that you are saving? It's not a sale. Correct. Yeah, so please move to the next slide. फिर इसमें आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ सवाल आए हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस या मेडिक्लेम भी होना चाहिए क्या? अगर होना चाहिए तो उसका क्या मतलब कैलकुलेशन है या रेशो क्या होना चाहिए? Okay, so as this slide is showing over here, you plan for something, and most of us plan ki, okay, it's never a smooth road, right? It's like they shown in this picture. Life is always full of ups and downs, and you never know when Murphy will strike, and that's when you should be prepared for bad times. Okay, now bad times can be multiple ways. uh, जैसे अभी के करंट सिनारियो में व्हाट आई एम सीइंग इज जॉब लॉस, सैलरी कट्स. ओके, इसके अलावा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स आल्सो, existing clients who were very healthy, but because of some reason, uh, maybe accident or something, and everything changed, their entire life changed. Okay, so there are many life changing events which happen इन एवरीबडीज लाइफ. ओके, आज किसी और के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ हो सकता है, परसों आपके साथ हो सकता है. सो ये जो डिफिकल्ट टाइम्स है इसके लिए भी प्रिपेयर होना जरूरी रहता है. एंड इसके लिए जो 4-5 टूल्स है, जैसे आपके बात मतलब अगर आपको कुछ हुआ तो आपके फैमिली को सफर ना हो इसलिए आप इंश्योरेंस लेते हो. जैसे आपकी कार खराब हो गई तो गवर्नमेंट बोलता है बाय डिफॉल्ट आप कार इंश्योरेंस लेके रखो, इसलिए हम सब कार इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? सो सिमिलरली अपना खुद का इंश्योरेंस जो अर्निंग मेंबर है घर का, हाँ अगेन इसमें बहुत जरूरी है कि ओनली अर्निंग मेंबर का, अपने बच्चों के नाम पे पॉलिसीज मत लेना. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल टेक दैट. सो जो अर्निंग मेंबर है ही हैज टू टेक अ टर्म प्लान ऑन हिज नेम. उसके अलावा यू हैव टू हैव इंश्योरेंस, इनफ इंश्योरेंस कवर विच विल कवर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंटिजेंसीज. अगर जॉब लॉस हुआ या कुछ हुआ, कोरोना जैसी ये आती है या कोई भी बीमारी होती है, तो दैट्स व्हाई वी शुड हैव अ गुड मेडिक्लेम as well as health plan. I think Shreya had taken a very good session on health plan. आप हमारे YouTube वीडियोस में जाओगे तो आपको हेल्थ प्लान के बारे में बहुत अच्छी तरह से श्रेया ने एक्सप्लेन किया हुआ है. प्लीज डू विजिट दैट वीडियो wherein you will understand what is the difference between mediclaim and health plan, and will help you take a decision if you don't have one. Okay, you should have accident insurance. It's very cheap, as low as 900 rupees odd. Okay, so there are these all insurances aapko very valuable in your life. These are all must have kind of things. मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप चैट बॉक्स में डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं. एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स वी विल टेक योर क्वेश्चन आल्सो. यस. Okay, this is one of my favorite slides, and
one of the question which comes from all of the people कि मेरी सैलरी क्रेडिट होते ही गायब हो जाती है. आई थिंक व्हाट्सएप पे भी काफी सारे ऐसे फॉरवर्ड चलते रहते हैं काइंड ऑफ. सो it is very necessary that you don't get into debt trap. debt मतलब loans. Okay, आप लोन के ट्रैप में मत पड़िए. A lot of people have habit of going for personal loans and credit cards. These are one of the most dangerous financial instruments to have if they go beyond control. Okay, and believe me, 9 out of 10 times they go beyond control. Okay, so अगर आपको आदत है कार्ड्स का, क्रेडिट कार्ड्स का स्पेसिफिकली, प्लीज इस आदत को बदल दीजिए. हाउ यू कैन मैनेज दैट? देर आर वेरी इजियर वेज. देर आर many other sources जिसके थ्रू आप आपके टेम्पररी फंड के नीड्स रहते हैं ना, वो ले सकते हैं. बट यूजिंग कार्ड्स स्पेसिफिकली, बिकॉज कार्ड का प्रॉब्लम ये होता है कि since it's very easy to use, okay, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, वेरी इजी टू यूज है, एंड देयर इज नो कंट्रोल. आप काफी बार जो सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल. अ पर्सन, अगर मेरे पास, मैंने डिसाइड किया मेरे को फोन लेना है. सपोज आई एम कैरिंग 10,000 rupees in my pocket, okay, and I don't have any cards with me. I will most likely go and buy a phone which will cost me 8,000, 9,000, 10,000, correct? But if I'm carrying a card, 9 out of 10 times I'll end up buying a phone of 12,000, 15,000, or if not 25,000 also. I'm sure all of us would have done that. Even I have done that mistakes. Okay, so very important that कार्ड्स का आदत डालना एंड वो कार्ड्स का को कंट्रोल के बाहर जाने देना इज वेरी वेरी unnecessary. Second thing which I have also would like to bring over here, when I'm saying dump bad debts, there are some good debts also. A lot of people are buying are basically ending their home loans. Okay, अभी इससे क्या होता है, होम लोन आप क्यों एंड करते हो? ताकि आपको पीस ऑफ माइंड मिले. होम लोन एक्चुअली इज वन ऑफ द गुड काइंड्स ऑफ loans or a debt product which is available. Okay, it is because of home loan you also get some tax benefits, and more so ever, home loan is such a product which is generally much nearer to the what do you say, the rate of any debt instruments like fixed deposits. So if you are actually considering paying off your home loan, first I would suggest look from all the angles, talk to a financial consultant and understand whether it is a good decision or not. It's not at all ideally what you should do. Again, we have done a very exhaustive video on this. It is there in our YouTube channel. You can go through the channel and find a detailed video on this with regards to home loan. But again, if you are restructuring your loans, please take help of a financial consultant before doing that. So can you please move to the next slide? Yeah, Dipali, you would like to add something, or can I? Yeah. Actually, I have few questions here. Okay. Many of the times it is seen that people want returns in short-term period. So, मतलब what will you suggest कि किसके लिए कितना पेशेंस रखना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में भी हमें गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं? Is that possible? Correct. So again, I'm sorry, I'm again going to the health versus wealth wala example. कि if you want to reduce weight, and if somebody says कि मैं आपको ये दवाई देता हूँ, उससे आप अगले 4 दिन में 10 किलो वजन आपका कम हो जाएगा.
आई एम श्योर एवरीबडी विल से कि यार कुछ तो गड़बड़ है, राइट, एंड मोस्ट ऑफ यू विल फील कि उसका साइड इफेक्ट्स है. So it's the same thing. A lot of people, when it comes to money, uh, when it comes to investments, one of the most thing which you should stay away from is greed. Okay, जैसे ये particular slide दिखा रहा है, काफी बार मेरे पास क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड है, रिटर्न नहीं दे रहा है, 2 साल हो गए, नेगेटिव चल रहा है, मेरे को कोई और दूसरा म्यूचुअल फंड सजेस्ट करो. I'm sure Deepali, you also get a lot of Yes. phone calls for this. Yes. So this is a live example. In fact, I would like to tell all those clients, please look at this picture. ये स्टोरी हमने सबने बचपन में सुन रखी है, एंड ऐसा लग रहा है कि that particular dog in the water जिसका रिफ्लेक्शन है, he is having better food than what I have, kind of. So ये क्या होता है ना कि ग्रीड के वजह से हम काफी बार गलत डिसीजंस लेते हैं. काफी खास करके इक्विटी मार्केट में तो वेदर इट इज शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल buy when they should actually be selling and sell when they should actually be buying, and that's primarily because of greed. They compare their portfolios with somebody else's portfolios. Even if I tell you, even in simple instruments like FD, जस्ट बिकॉज एक छोटी बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रही है, आपका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप उसमें डालते हो, एंड फिर बाद में पता चलता है कि वो बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, गड़बड़ हो रही है. A lot of my clients have lost their funds with the crisis which happened in Kapol Bank, in PMC Bank, right? Or there are some other scams which happen. People put their money in dubious schemes and eventually lose that. And the so basically root cause of such problems is greed. अपनी ग्रीड को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है. अगर आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क ना लो, रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो. डिपेंड करता है आप हर एक का रिस्क एटीट्यूड और उसकी फैमिली का नेचर क्या है, उस बेसिस पे आप रिस्क लो. लेकिन पूरा का पूरा पैसा ग्रीडी इंस्ट्रूमेंट में डालना. वन ऑफ माय क्लाइंट्स रिटायरमेंट का उसका सारा पैसा उसने लैंड में डाल दिया, थिंकिंग दैट दैट लैंड इज गोइंग टू अप्रिशिएट. उस कुछ तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला था अड़ोस पड़ोस में. दैट प्रोजेक्ट नेवर केम अप, and his entire retirement corpus is sitting on a piece of land, and now he's just not able to sell that land to anybody in this time. पैसे की आज जरूरत है, सारा पैसा वो लैंड में अटका पड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा है. So I have seen so many such examples. That's why I say कि please control your greed. I have got one question. Yeah. Is fixed deposit still a good option for debt investment for short term of 1 year, considering low interest rates? Yes, it is a very good option. There are multiple options in debt instruments. Fixed deposit is one of them. A person, only thing is, if you're going for 1 year FD, I would suggest again stay with good institutions itself, which are reputed institutions and which have uh, good ratios in terms of the NPA which they have, the kind of liquidity they are having, kind of, and the kind of management that company is having. Okay, company, you can go for company FDs also or bank FDs also. Apart from that, there are some other instruments as well. But yes, FD is a good instrument for short term, or rather, it is the one of the most important instrument for short term savings. अभी बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब हम फाइनेंशियल प्लान के लिए मीटिंग्स करते हैं, तो मेनी ऑफ द यंगस्टर्स से दैट आई वांट टू गेट रिटायर्ड एट 50 or 55 because the stress which we are getting right now, I don't think we will able to continue this till 60. तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या शुरू से ध्यान रखना चाहिए?
youngsters, I would always say, as I had explained in my earlier slides, is कि start investing early. जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलते रहेगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं कि आपका पैसा ज्यादा 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 कंपाउंड होते रहेगा, ज्यादा सेव होते रहेगा. एक्सपेंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ कमिटेड रहना जरूरी है. जैसे ये पर्टिकुलर स्लाइड बता रहा है, काफी बार ऐसे होता है हमको, हम लोगों को इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सजेशन देते हैं. मार्केट जब भी चढ़ता है तभी स्लोली स्लोली चढ़ता है, जैसे ये एस्केलेटर चढ़ रहा है. बट जब भी गिरता है तभी वो एकदम फास्ट गिरता है. एंड दैट इज ट्रू विथ एनी मार्केट्स. आप कोई भी, नॉट ओनली इंडिया का बीएसई सेंसेक्स देखो, आप बाहर के कंट्रीज के, डेवलप्ड कंट्रीज के, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के, आपने अगर उनके लॉन्ग टर्म हिस्ट्रीज देखोगे, सारा का सारा ये सब कुछ आपको गूगल पे अवेलेबल है. ओके, आप चाहे अमेरिका का वहां का उनका इंडेक्स देखो, चाहे पाकिस्तान का इंडेक्स भी देख लो. ओके, कराची स्टॉक एक्सचेंज का, आपको यही दिखेगा कि स्टॉक मार्केट्स बिहेव इन सिमिलर फैशन. ओके, स्लोली स्लोली ऊपर चढ़ता है और दाढ़ से नीचे गिरता है, फिर से वो ऊपर चढ़ने लगता है, फिर से गिरता है. ये ऊपर नीचे होता रहता है. ओके, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको पॉजिटिव ग्रोथ दे सकता है. एक्सपेक्टेशन, अगर कोई आपको बोल रहा है कि 12% ग्रोथ मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्लाइड में दिखा रखा है, एनुअल रिटर्न 12%, आपको लगता है कि हर साल आपका पैसा 12% ग्रो होगा, तो नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. इट इज गोइंग टू कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. ओके, किसी, जैसे अगेन नीचे वाले एग्जांपल में रियलिटी में जो बताया हुआ है कि किसी साल आपका -5% होगा. से एग्जांपल, गलत इलेक्शन का रिजल्ट गलत लग गया, चलो मार्केट 5% नीचे गिर गया. फिर अगले साल अच्छा रेन्स हुआ, अच्छा क्रॉप हुआ, एग्रीकल्चर इनकम बढ़ा, लोगों का कंजम्पशन बढ़ा, तो अचानक से अगला साल 22% ग्रोथ मिला. उसके अगले साल, बिकॉज पिछले साल में अच्छा ग्रोथ हुआ, तो अगले साल और ज्यादा ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है, तो फिर से 4% ही ग्रोथ हुआ. उसके अगले साल और ज्यादा ग्रोथ हुआ. फिर से इलेक्शंस आए, कुछ गड़बड़ी हो गई, सरकार जो आई वो एकदम से अस्थिर सरकार आई, 17% ड्रॉप हो गया. आर यू रिलेटिंग? आप सबने ये सब सुना होगा गए 10 साल की हिस्ट्री जो मैं बोल रहा हूँ. सो यही होता है मार्केट में. कुछ अच्छी चीजें होती है, मार्केट तेज भागता है, कुछ बुरी चीजें होती है, मार्केट गिरता है. बट एज ए इकोनॉमी, एज अ कंट्री एंड एज वर्ल्ड, वी ऑल आर प्रोग्रेसिंग. सबका जीडीपी जो बोलते हैं ग्रोथ पॉजिटिव है. ओके, सो वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो इंडिया की भी इकोनॉमी ग्रो हो रही है. इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया की कंपनीज की इकोनॉमी ग्रो हो रही है. करेक्ट. तो अगर इंडिया 4%, 5% ग्रो करेगा, तो इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज है वो 50% ग्रो करेगी. जो खराब कंपनीज है वो शायद -50% ग्रो करेगी. करेक्ट. सो लेकिन आपको वही देखना है कि आप, आर यू इन्वेस्टिंग इन दोज टॉप 50 कंपनीज? And that's why you should understand that your investments would always be ups and downs. So don't take emotional decisions. Again, take financial decisions. If you have decided to stick into equities, आपने बोला कि मैं 10 साल के लिए इक्विटी में पैसा डालूंगा, तो जस्ट बिकॉज मार्केट 17% गिरा है, आप उसमें से बाहर निकलोगे, तो ये गलत है. मार्केट ऊपर नीचे ही होगा, वो कभी भी सीधा स्ट्रेट लाइन में 12% रिटर्न नहीं देगा. आपको ये पकड़ के ही चलना पड़ेगा, एंड जितना गिरेगा उतना ही वो उछलेगा आगे जाके. यस, उछलने का टाइम आगे पीछे हो सकता है, कभी इमीडिएटली उछलता है, कभी स्लोली स्लोली उछलता है, बट इट कम्स अप. बिलीव मी, इट कम्स अप. मैं सभी से कहना चाहूँगी कि हम एवरी संडे या ऑल्टरनेट संडे दोपहर में 3:30 बजे अलग अलग टॉपिक्स लेके सेशन लेते हैं. तो उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भेजते हैं, जिसमें हम पूछते हैं कि आपके अगर कोई सजेशंस है या कोई क्वेश्चंस है, तो यू डेफिनेटली कम टू अस.
तो हमारे पास ऐसे कई सारे टॉपिक्स सुझाव भी आए हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं। तो जिन्होंने ये टॉपिक्स मिस किए हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब अवर श्रेया वैद्य यूट्यूब चैनल। और आप ये सेशंस देख सकते हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं। मिहिर, मैं एक पूछना चाहूँगी कि जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में बोला जाता है कि इट इज़ अ बास्केट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन कौन-कौन से कैटेगरीज़ में होना चाहिए और क्या रेशो में होना चाहिए? As you rightly said earlier कि कभी ऐसा देखा जाता है कि पूरा पैसा एक ही जगह चला जाता है। तो in such scenario, what will you advise? So, see, आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, समझ लेना कि आप इन्वेस्ट इसलिए करते हो, आपके फ्यूचर के लिए करते हो। आपके फ्यूचर के गोल्स हैं जो कहीं जाने वाले नहीं है। हर आदमी आज कभी ना कभी तो रिटायर होने वाला है। हर हर फैमिली में बच्चे बड़े होने वाले हैं, उन बच्चों को एजुकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। उनके मैरिज होने वाले हैं, जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपके जो नीड्स है वो किधर भागने वाले नहीं है। हर एक की लाइफ में मेडिकल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आज ना कल आएंगे, लेकिन आएंगे पक्का। तो आपके जो ये सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, नीड्स है, गोल्स है, ये किधर भी जाने वाले नहीं है और बहुत बहुत जरूरी है ये सारे। अभी इसके लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी एक ही चीज में करते हो, ओके, भले आपको जिस किसी ने भी एडवाइस दी है और वो चीज बहुत बढ़िया भी है, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू predict today that that thing will not fail, right? सो इसलिए जरूरी है कि आप अलग अलग चीजों में वो जो आपकी फ्यूचर के इम्पोर्टेंट गोल्स के लिए जो पैसे लगा रहे हो वो अलग अलग चीजों में रहे, जरूरी है। सिंपल है, आपके आप कोई भी घर में जाओ, किसी के भी घर में जाओ, आपको दिखेगा कि किचन में सारा सामान रहता है, राइट? अगर कोई मे बी विल कीप सब्जियां भी रखेंगे, दाल भी रखेंगे, चावल भी रहेगा, ऑल काइंड ऑफ फूड स्टफ्स आर स्टोर्ड। व्हाई डू यू स्टोर दिस? व्हाई नॉट ओनली स्टोर वन आइटम जो कल खाने वाले हो? बिकॉज यू नो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास एटलीस्ट अगले 4 दिन, 5 दिन, 4 हफ्ता, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल पोजिशन, यू स्टोर सम फूड फॉर अ रेनी डे, करेक्ट? तो सेम happens over here also. If you are going to store, you just don't store one thing. अगर किसी ने सोचा कि चलो मैं ना अगले 5 दिन के लिए मैं सिर्फ दूध स्टोर करके रखता हूँ, तो क्या होगा उसका? और अगर वो दूध खराब हो गया तो फिर वो 4 दिन 5 दिन भूखा रहेगा, करेक्ट? किसी ने सोचा कि मैंने खाली सब्जी लेके रखता हूँ फ्रिज में, सारा सब्जी, तो मेरा फ्रिज पूरा सब्जियों से भर देता हूँ, और अचानक से पावर फेलियर हो गया एंड पूरा फ्रिज में जो भी रखा है सब खराब हो गया। व्हाट विल हैपन? इज द सेम थिंग, same example. So it's very necessary that you diversify. What do you diversify? You diversify into safe instruments like your FD. I told you some time back. There are there are a lot of products in safe. Your PPF is there, your company PF is there, FD is there. Then you have debt mutual funds to some extent, which has liquid plans, arbitrage plans, etc. You can also invest into company FDs. So there are many safe instruments which you can invest into. You can invest some of your money into a bit riskier in investments like equity. इक्विटी में भी आप म्यूचुअल फंड रूट से बाय कर सकते हो, आप शेयर्स बाय कर सकते हो, और पीएमएस जैसा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो, डिपेंड करता है। इनफैक्ट श्रेया हैज डन अ वंडरफुल वीडियो ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। आई वुड अगेन आस्क ऑल ऑफ यू इफ यू कैन गो टू हर यूट्यूब चैनल एंड सी दैट वीडियो।
You can also have part of your investments in real estate, in gold. If you understand anything like say commodity, अगर किसी को समझना है तो थोड़ा पैसा commodity में भी डालो. तो हर चीज में थोड़ा 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 पैसा रखना चाहिए. In fact, I tell a lot of clients कि also invest in international equities. मतलब अगर आप शेयर्स में पैसे ले रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर भी खरीदो, गूगल का शेयर भी खरीदो, वो भी तो भागने की चांस है, राइट? सो यू शुड डाइवर्सिफाई. अभी डाइवर्सिफिकेशन का रेशो क्या होना चाहिए? तो ये रेशो हर के लिए अलग अलग है. मेन तो ये डिसाइड करो कि सेफ और रिस्की का रेशो क्या रहेगा. आपका कितना पैसा सेफ में होना चाहिए, कितना रिस्की का होना चाहिए. अगेन वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसी है. अगर घर में दोनों लोग कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो ज्यादा रिस्क ली जा सकती है. अगर एक ही आदमी कमा रहा है तो कम रिस्क लेनी चाहिए. वो जो एक आदमी कमा रहा है उसको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है तो उससे और भी कम रिस्क लेना चाहिए उसने. करेक्ट. सो ये रिस्क का रेशियो क्या है? देयर इज नो वन फॉर्मूला. व्हेन आई डू फाइनेंशियल प्लानिंग, looking at that person, his history, his previous savings, everything, I decide on that ratio and I tell him कि okay तेरे लिए ये ratio suitable है. Okay, and for same to मतलब दो भाइयों के लिए दोनों के लिए अलग अलग रेशियो भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि भाई ने 70% पैसा इक्विटी में लगाया तो मैं भी 70% इक्विटी में लगाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? उसके सो अगेन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उसके घर का फ्रिज अलग साइज का है, आपके घर का अलग है, तो आप अलग टाइप से चीज स्टोर कर सकते हो. I guess it's basically risk taking capacity हर एक का अलग अलग होता है, वो हिसाब से ही वो होना रिस्क चाहिए. टेकिंग कैपेसिटी हर एक का अलग रहता है, हर एक का लाइफ अलग रहता है. यू कांट कंपेयर टू इंडिविजुअल्स. देयर आर मेनी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एट डिफरेंट प्लेस. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. उसने वो किया इसलिए मैं भी ये करूंगा. ये जो मेंटेलिटी है उसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल टेक बैड फाइनेंशियल डिसीजंस. Please don't take emotional financial decisions. That's what we are telling. And same coming to the next slide, which is in investment decision with half knowledge, which is the most dangerous thing. Uh, I'll give you a very classic case, and I had actually put that on social media as well. A few days back, I got a call. I got this so-called call from a insurance company. Okay, and that person was telling that I am having so and so insurance policy and I need to pay 60,000 rupees to him because my insurance policy has got a lot of bonus. So आप 60,000 रुपया दे दो तो आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा. I immediately understood that this is definitely a dubious call kind of. And I have seen a lot. What 3 or 4 of my clients have already lost money to such calls. Okay, so half knowledge के वजह से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, just because so specifically it happens in shares. कोई बोलता है कि बॉस ये XYZ कंपनी का शेयर खरीद ले, ये तो पक्का भागने वाला है, एंड हम उसमें पैसा डालते हैं, एंड जिस दिन हम डालते हैं उस दिन से वो शेयर का भाव कम होना चालू होता है. आई एम श्योर a lot of people would have encountered this. I myself have encountered this. मैंने पैसे डाले एक पर्टिकुलर शेयर में और उसके अगले दिन से वो गिरना चालू हो गया. एंड अगर उसका पास्ट हिस्ट्री देखो तो वाओ मस्त शेयर चल रहा है. सो बट मेरे क्यों गिरना चालू हुआ? बिकॉज आई नेवर न्यू व्हाट इज दैट शेयर अबाउट, व्हाट इज दैट कंपनी. जस्ट बिकॉज माय फ्रेंड टोल्ड मी आई हैव इन्वेस्टेड. Investments with half knowledge are the most dangerous. Okay, a lot of people have अगर मैं इंश्योरेंस के बारे में बोलूं, many people straight away say no no मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए. Okay, why? Because they would have invested in the past in wrong insurance products. अब मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो पहले ही आते हैं हमको बोलते हैं सर मेरे पास ये 4-5 पॉलिसीज है, इसका मैं क्या करूं, मेरे को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. The reason is if you have invested in past because of half knowledge, it is very dangerous. You should always understand what exactly the product is about. पूरी तरह से हर there is no I frankly believe कि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है, बट वो अच्छाई आपके लिए है कि नहीं सुटेबल, ये बहुत जरूरी है.
जो बनाने वाले हैं ना, प्रोडक्ट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी इसलिए प्रोडक्ट नहीं बनाती है कि वो लोगों से पैसा चीट करके ले ले। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, बट वेदर वो अच्छा आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, ये जरूरी है देखना। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो प्लीज डोंट एंटर इन दैट प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड हैज टेकन XYZ पॉलिसी, just because your friend has invested in so and so FD, just because your friend has taken so and so company ka shares, you should not be taking it. You need to understand whether what is going to be important for you, or how is it going to benefit you, what are its pros, what are its cons, what are the problems with that uh, particular investment. Rather, कोई भी इन्वेस्टमेंट एंटर करने से पहले डिटेल में सोचो कि वेदर वो इन्वेस्टमेंट में क्या खराबी है, क्या अच्छा है ये मत देखो, क्या खराबी है, ये खराबियां निकालने की कोशिश करो। एंड फिर आप पूरी तरह से कन्विंस जब तक नहीं होते हो, आपका पैसा किसी को भी मत देना, एक वो चेक किसी को भी मत देना। पहले पूरी तरह से, चाहे तो 2 दिन लेना, 10 दिन लेना, 10 दिन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी मत लेना। या मिहिर, अगर किसी को फाइनेंशियल प्लान करना है तो किसको अप्रोच करना चाहिए? या क्योंकि बहुत बार बहुत लोग एडवाइस देते हैं, हो सकता है वो बैंकर्स है, सीए है, इंश्योरेंस एजेंट है, या कोई भी जो फाइनेंस इंडस्ट्री या शेयर मार्केट में काम करते हैं, ऐसे भी सजेशंस देते हैं। तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए फाइनेंशियल प्लानर को? मेरे हिसाब से एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर वो होगा जो आपको नॉलेज तो दे ही। नॉलेज आज नॉलेज के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल है, अगर आप कोई भी गूगल करोगे, हर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आज गूगल में अवेलेबल है, तो उसके लिए आपके लिए नॉलेज के लिए फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत नहीं है। आपको फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है ए आपके हैबिट्स सुधारने के लिए। ओके, आपकी जो जो खराब हैबिट्स है विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, वो हैबिट आपको आपके लिए सुधार पाएगा कि नहीं। एंड ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट देके सुधारे, जिसके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हो जो आपको अलग अलग सोल्यूशंस दो देगा, तो ही आपके हैबिट्स सुधार पाएगा वो। सो आपके फाइनेंशियल हैबिट्स जो सुधार पाएगा, ऐसे ही आदमी के साथ करो जो सीरियस है ये हैबिट सुधारने के बिजनेस में। somebody who is full time या seriously in financial advisory business, you should stick with him. Okay, second is whether he is equipped with all kinds of products. Okay, because as I if you see today, we spoke about right from safe products, which are products like FDs and all, to riskier products like your equity or PMS or direct shares or maybe properties. So there are so many aspects when you're buying financial instruments. So somebody who has knowledge of all the things would be an ideal financial uh, guidance counselor for you, and not somebody who's selling only one product. Okay, he can guide you, but not to the extent which the other person can guide you. Plus, somebody who can offer you with the execution help, because that is also, it's not just buying the product. After that, what kind of service you should be getting it, that is also very important. So somebody who has an infra टू प्रोवाइड यू दी सर्विस, आपको आगे जाके हर महीना या हर साल में जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगता है, पैसा निकालने के लिए, एडिशनल पैसा डालने के लिए जो भी सपोर्ट लगता है, सो दैट सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी देयर. So that's how you should find out a good financial planner kind of. And most importantly, that person has to be honest. That goes without saying. So I'm not even saying that. Somebody uh, who is working in your interest and not in somebody or not in his interest. There should not be
clash of interest kind of. So I'll give you an example. A lot of my clients come up, बोलते हैं कि मैंने ये पॉलिसी खरीदा था 2010 में, 2012 में. क्यों पॉलिसी खरीदा? क्योंकि मेरे रिलेटिव ने XYZ कंपनी की एजेंसी ले ली. ये कॉमन आंसर है. 10 में से 9 लोग मेरे को ये आंसर देते. पॉलिसी में क्या है किसी को मालूम नहीं, उससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले कुछ भी मालूम नहीं, जस्ट बिकॉज उसको खुश करने के लिए आपने वो पॉलिसी ली रखी है. सो बेसिकली इसमें दो चीज रहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है और एडवाइजरी अलग होता है. डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, आपके लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके लिए उसको कमीशन मिलता है उसके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. सो सपोज अगर मैं आपको इफ आई एम सजेस्टिंग यू एन ICICI प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड, so for distributing that mutual fund I am getting some commission, so that is basically a distributor. And there is an advisor who will not only looking at only as a distributor, but he is giving only advice kind of. So generally I suggest people that you should look at people who are giving you advice. These advisors may actually charge fees also. Be open to pay those fees. ऐसा मत सोचो कि मैं फी क्यों भरूं, मेरे को तो फ्री में सब मिल रहा है. सी योर प्लान इफ यू आर गेटिंग थ्रू एन एडवाइजर हु हैज नो इंटरेस्ट, ओके, उसको कमीशन नहीं मिलने वाला है, तो वो आपको एक जेन्युइनली अच्छा प्लान बना के दे सकता है. सो लुक एट फाइनेंशियल एडवाइजर्स who can give you a much better unbiased advice. निखिल, एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारा टैक्स चला जाता है सैलरीड लोगों का. तो एवरीवन नोज अबाउट ATC. तो ATC का नॉर्मली 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेकिन व्हाट आर अदर वेज जिसमें हम टैक्स और कम कर सकते हैं? Most importantly, first and foremost, very important that you declare your tax on time. Salaried, again, all those people who are salaried over here, I am sure आपका जो organization है वो in the month of April और कभी-कभी May, June तक ये activity चलती है most of the organizations में, where they take investment declaration. Okay. What is this investment declaration? Where you declare कि आप क्या-क्या investment साल भर में करने वाले हो. Okay. This is one good way to linearize your taxes. Linearize का मतलब क्या है कि टैक्स हर महीना टू महीना कटे, ना कि साल के एंड में एक बड़ा अमाउंट कटे. सो आपको ये जरूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन आप तभी के तभी अप्रैल में ही पूरी तरह से दे दे. अगेन, वाइल टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज रीच आउट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज अबाउट. ओके, सो दिस इज वन वे टू सेव योर टैक्सेस. अगर आपका लीनियराइज होगा तो आपका टैक्सेस कम कटता है. Second is there are many other tools. See, taxation itself is a big topic. We would be having one more basically a full-fledged session on taxation, so I don't want to get into that topic today, but I would recommend each one of you to participate. Keep basically हमारे आगे जो messages आते हैं उसमें देखते रहो, और हमारा taxation वाला जो भी वीडियो रहेगा उसको पूरी तरह से देख लो. Few more questions are there. Yeah. Someone is asking, I had invested in gold mutual fund. Is it good for me to in next 6 months? Yes, gold, if you see from around in early 30s, gold has now gone to 55,000 levels. So a lot of people have made good returns on gold. Basically, when there are difficult times in any on global level, gold is always a good investment kind of.
but it is, if you ask me, uh, it is also, it is also a commodity like any other commodity जो demand supply पे चलती रहती है. Okay, so gold is good, but for 2-3 years के लिए it's an okay product kind of. So I would suggest ज्यादा गोल्ड में ज्यादा पैसा मत लगाना, एक लिमिटेड पैसा लगा रहे हो तो ठीक है. आजकल बहुत सारा इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसी पे सर्च करते हैं फंड्स, तो क्या ये सही में एडवाइजेबल है कि फंड्स यू हो या और कोई, क्योंकि वीडियोस भी अवेलेबल है, तो व्हाट विल यू से? So see, it's again, मैंने जैसे बोला कि half knowledge is very dangerous. Okay, it's हम क्या करते हैं ना, एक एक फंड देख के एक फीचर देख के हम खुश हो जाते हैं. ओके, सो एग्जांपल दूं कि मेरे को मेरे बेटे के लिए अभी स्कूल के लिए लैपटॉप लेना था. मैंने लैपटॉप लेने से पहले मैंने देखा कि XYZ कंपनी का लैपटॉप था, उसका कैमरा बहुत बढ़िया है. ओके, सो आई ब्रॉट दैट लैपटॉप होम, एंड फिर घर आने के बाद मुझे पता चला कि इसके स्पीकर्स तो बिल्कुल ही बकवास है. एंड अभी जब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो कैमरा तो सही चल रहा है, लेकिन साउंड के लिए मेरे बेटे को बेचारे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है. सो क्या होता है ना कि ऑनलाइन पे आप एक फीचर देख के खुश हो जाते हो. प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल. यही लैपटॉप के बारे में अगर मैंने आईटी के कोई एक्सपर्ट को पूछा रहता तो शायद मुझे आई वुड हैव नॉट बॉट दिस लैपटॉप. सो इट्स एज गुड एज दैट कि पूरी तरह से सोचो, डाइवर्सिफाई करो, हैबिट चेंज करो, ये ज्यादा जरूरी है. गुड सजेशंस मिहिर. एक सवाल ये है, इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और बाय अ होम? So again, any product, okay, it's not only about real estate. There is no right or wrong time, मैं यही बोलता हूँ. रियल एस्टेट अगर आप देखो तो देर इज लॉट ऑफ करेक्शन in real estate. Lot of properties are getting sold at cheaper rate. We suggest you to buy home loan. That is very important. Okay, that's a very good product. आपके पास अगर लोन कम है तो please top up your loans. If you have a good, if you see good linear income coming for next few years. Okay, uh, as low as 6.9% ROI पे लोन्स मिल रही है. उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं. ओके, सो दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू प्रॉपर्टी, बट इट हैज टू बी अगेन अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट. आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स में से आप सारा का सारा पैसा अगर प्रॉपर्टी में डाल रहे हो, काफी बार आप अपग्रेड करते हो स्ट्रेच करके, आप आपका जो भी सेविंग्स है वो सारा प्रॉपर्टी में डाल के नया प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज आपको और बड़ा घर लेना है, देन इट्स नॉट द राइट थिंग. ओके, सो यू हैव टू हैव फाइनेंशियल एसेट्स आल्सो. सब कुछ लिक्विडेट करके प्रॉपर्टी, दो 2 BHK मैं 3 BHK ले लेता हूँ, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो. वन मोर क्वेश्चन ऑन मेडिक्लेम. बहुत सारे लोगों का कंपनी में मेडिक्लेम होता है, तो उसके अलावा कोई मेडिक्लेम लेना जरूरी है, और अगर लेना है तो कितने अमाउंट का मेडिक्लेम होना जरूरी है? सो इसके लिए मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ और किसी का देने का जरूरत ही नहीं है. 2012 तक me and Shreya both were working professionals, and we had our mediclaims, our as well as our parents' mediclaims through our respective companies. I think 2010 Shreya quit her job, and I quit in 2012. And just after I quit my job, we both, because we had our respective company mediclaims, our parents' mediclaims, we were not having any other third party mediclaim. Okay, and immediately after I quit my job, there was some medical emergency in my family, and I had to sell out big amount from my own pocket.
Okay, these things do happen. So it is mandatory. There is no other word. Mandatory, mandatory, mandatory. आपको एक अलग मेडिक्लेम आपकी कंपनी के मेडिक्लेम के अलावा आपके पास रहना जरूरी है. आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान रहना जरूरी है. देयर इज नो अदर वे आउट. ओके, अमाउंट चाहे स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, बट प्लीज उसको अपग्रेड करते रहना. हम काफी बार जॉब चेंज करते रहते हैं. हमारी कंपनीज में पॉलिसीज अभी अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रिड्यूसिंग कॉस्ट. यू नेवर नो, अगर आपकी कंपनी कल उठ के बोलती है कि हम मेडिक्लेम देना बंद करेंगे. करेक्ट. सो प्लीज, ये सारा चीज मैंडेटरी है. आपको मेडिक्लेम लेना जरूरी है. अगर नहीं लिया है तो प्लीज अप्रोच योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट. रिटायरमेंट के बाद कोई भी आपको मेडिक्लेम नहीं देगा. ये भी बहुत जरूरी है. बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि हम तो 10 साल से मेडिक्लेम पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो कभी मतलब उसका यूज नहीं करना पड़ा, तो इट इज एज गुड एज मतलब एक्सपेंस ही है वो. तो बी हैप्पी अबाउट इट. यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. अब अभी आप बोलो मेरे को, मैं हर साल मेरे कार का इंश्योरेंस लेता हूँ, तो शुड आई गो एंड बैंक माई कार एनीवेयर जस्ट टू क्लेम इंश्योरेंस? आई एम हैप्पी. अगर इफ आई एम नॉट क्लेमिंग, आई एम हैप्पी. एक साल अगर एक क्लेम आ गया, आप वो 10-15 साल का सब कुछ आप वसूल करोगे. एंड वो आए नहीं, प्लीज आई प्रे टू गॉड. बट अगर नहीं आता है तो बी हैप्पी. इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट दैट. इट्स अ गैम्बल. ओके, in a sense it's a gamble. I used a wrong word actually over here. It's a protection for you, right? हम दवाई क्यों खाते हैं? हम भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? ताकि हमारे हमारे हमारा अच्छा ही रहे. वैसे ही इंश्योरेंस. और आई गेस अभी के सिनारियो में, कोविड के सिनारियो में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बार एक ही फैमिली में 3-3, 4-4 लोग इन्फेक्टेड है, तो अगर छोटा अमाउंट का भी मेडिक्लेम होगा तो भी वो सफाइस नहीं है. See, what you are saying is very important in today's scenario. uh, I have seen entire families uh, facing problems because of COVID. घर में एक को आ गया और फिर वो स्प्रेड हो गया, विद इन द फैमिली स्प्रेड हुआ है. It's a very sad story at this moment, but it is very important, that's why that you have a protection against that. If not, it would be very difficult to manage. फ्यूचर में कोई जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, ये इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल होता रहेगा. सो अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज ले लो. इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी. एक सवाल ऐसा आया है कि इफ आई ओन two properties, can I get tax benefit on both if any one property is Dipali, I'm sorry, just to cut you, I just remind, we have done a on health and mediclaim. I said sometime back also, we have done a very beautiful 1.5 hour video on health insurance as well as mediclaim. Okay, please go to shreyavaidya.com, Shreya Vaidya's YouTube channel, or you can see my Facebook. Through that you can visit there. You will see lot many such videos which would be of help to you. Can I repeat the question? Yeah, sorry, I'm sorry to cut you. It's okay. If I own two properties, can I get tax benefit on both if any one property is short of interest exemption up to 1.5 lakhs? See, again, property taxation is again a very big topic. I would like to talk to this individual in detail, because see, this is a very detailed answer. I'm not taking taxation related questions over here today. We will be having a separate session on taxation. Another question for property only. If I purchase extra square feet in my under redevelopment flat,
will I get home loan for that extra purchase of square feet? Yes, you can get it. We have done a loan related detailed video, or the person can get in touch with us. It's a complicated thing, but we will help him with the formalities and explain the processes. So whoever is asking the question can please get in touch with our team, and I'm sure we can help him over there. I can see another Also, question we from have, Med. I think we have done a very important topic on self redevelopment few days back, where you can actually redevelop your own society. The members of the building can come together and do the redevelopment in a very cost effective way. If you are a member of a society, please go through this video, and you can also show it to your other members of your building to understand what self redevelopment is about. It's a very, very, very important topic in today's time, where a lot of builders are struggling and the properties are old. So it is very important that we should understand what this self redevelopment is about. Just to inform a lot of people over here who may not know that we as Smart Wealth have also entered into property division, where we intend to help people with their property related needs. अ, जो लोगों ने मेडिक्लेम और हेल्थ का मिस आउट किया है उनके लिए लिंक पेस्ट किया है चैट बॉक्स में, सो यू कैन कॉपी इट. I guess another question is on Mediclaim, but I guess that answer he will get for top up Mediclaim in that video only. What is top up Mediclaim? Is it good to have this option? Yeah, so I would urge again Mediclaim related video you can see on our website, on the YouTube channel. Yeah. सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक श्रेया वैद्य यूट्यूब चैनल को, उसे सब्सक्राइब कीजिए तो आपको अपकमिंग इवेंट्स की भी जानकारी मिल जाएगी और जो भी हमारे अभी तक हुए जो वेबिनार्स है उसके डिटेल्स भी मिल जाएंगे. I guess we are 1 hour 15 minutes से अपना वेबिनार चल रहा है and he has given very good information on importance of financial planning for salaried people. मिहिर लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि what 4 points 5 points you will give as a takeaway? Very interesting question. Thank you. So, दोस्तों, I as a financial planner would tell you very important 3 to 4 things. Again, be very आपका खुद का एक plan बना दो where you understand your expenses and income. Second is commit to your investment. कमिट करोगे तो ही वो बनेगा. सो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कमिट करो आपके इन्वेस्टमेंट्स में. डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स. कोई एक चीज में मत पैसा डालो, अलग अलग जगह पे डालते रहो. टेक प्रोफेशनल हेल्प. approach a good financial advisor who will help you do all this. And most importantly, keep patience and stay away from greed, kind of. So these are some of the takeaways of today's topic. And also I would also like to add, use your face masks and hand sanitizers. That is very important. So I think that's the advice from my side. Very true. सभी से ये भी पूछना चाहूँगी कि आप जैसे हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे ये वेबिनार्स रखे हैं, तो आपके भी अगर सजेशंस है, आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली हमें उसके लिए इन्फॉर्म कीजिए. तो जो भी हमारे अपकमिंग रहेंगे उसमें एक आपने सजेस्ट किया हुआ भी हो सकता है. तो I thank you all the participants
and Mihir and all technical team for arranging such a nice webinar. Thank you so much. Thank And you, Mihir. I would also like to thank Dipali, Drashti, and Sakshi, who would have worked a lot to make sure that this presentation was a successful one. So thanks a lot, my team. Thank you. Thank you.